So, hey Ayush, हेलो। how are you? हाय। आई एम गुड ब्रो, आप कैसे हो? मैं भी पहले बढ़िया। अपने बारे में बताओ, व्हाट आर यू डूइंग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में? कौन सा Yes. कोर्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या स्टोरी है? So, I'm doing computer science engineering, but practical way हाँ। कोई भी चीज को करने का वो कम है। वो चीज आ रहा है अब, धीरे धीरे लोग बात कर रहे हैं, हर चीज को सीख रहे हैं कि मतलब बुक पढ़ना है तो पढ़ा कैसे जाता है, वो भी लोग सीख रहे हैं। अभी था ना कि बुक पढ़ना इज नेसेसिटी, बट पीपल डोंट नो हाउ टू रीड बुक। कैसे बिल गेट्स हाँ, ये तो है। एक बुक खत्म कर देते हैं, एंड वी आर लाइक कि एक साल में भी एक बुक खत्म करना मतलब मुश्किल हो जाता है। तो ये इट्स तो है। इट्स मोर सॉर्ट ऑफ स्किल देन एन आर्ट। मतलब रीडिंग और छोटी छोटी चीजें जो सॉफ्ट स्किल होती है, वो सब सीखने से आ जाता है। इट्स नॉट कि हमको पहले से बचपन से ही आना चाहिए वो सब चीज। तो उन सब सेक्टर में हम काम करना चाहते हैं। लेट्स गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड देन वी विल गो इन डेप्थ। Okay, so my name is Ayush Bajaj. I am 25 years old. I did my schooling from St. John's High School, and then I did my college from Chandigarh University. I also did my computer science engineering from Chandigarh University itself. Uh, uh, I did my specialization in big data analytics, which made me learn a lot about numbers and analytics. During my college years, I was very fascinated about doing practical internships outside my college. So I did a lot of internships outside my college, and which the organization which I pursued for a longer time was known as ISEC. It's a youth-based organization in which I learned sales, handling teams, leadership, and all those stuff. So after that, I didn't sit for placements because through ISEC I got a placement opportunity before the placement started in college. You So got I did a job for one and a half. So we were a travel agency, not exactly a travel agency. We used to take kids to US, NASA tours करते हैं जैसे. So we did that. So I worked there for one and a half year. Then I was the best employee over there also. In ISEC also I was the best in whatever I did. So I thought कि यार मतलब I am not challenging myself to the core. उसके बाद I moved to real estate. I did a 3 month, 4 month gig in real estate. So I was doing well there also. So मतलब वहां पे भी इतना मेरे को चैलेंज नहीं हो रहा था. So I started a election management company, Jantak Sarvekshan, in 2019, and we made campaigns for politicians. We did surveys for them also. Plus, I have started a podcast called Jantak Show. It's a self-help podcast. We just started 7 months ago. That क्योंकि कोविड की वजह से the business thing wasn't very stable back in 2020. So I needed to diversify my things into digital media as well. So we started that as well. That's about it. That's my introduction. So that's amazing. So the thing, matlab, majority audience that will be watching this podcast, or in future they will be watching. So they are youth. They are entering the college or around Yeah. around the phase of deciding which profession to go into, and what exposure do you get when you work in startup, when you are in college, you are right now studying. So at your time when you have entered the college, what are the things that you focused on, or you think I should be focusing on when you were in first year or first second semester? Yeah, so I definitely focused on my studies. So I was among the top 5 students in my batch. So I got a CGPA of 8.6 last में, मतलब जो मेरी total बनी. मेरी last semester में six CGPA दी उन्होंने practical उसमें, क्योंकि an HOD was pissed off with me, तो उसने मेरी कम कर दी, नहीं तो I would have got मतलब 9 आराम से. तो I would मतलब recommend कि you should definitely focus on your studies. Your college is an amazing college. You should do a lot of things there also. But you should look outside your college also. Start exploring things like start doing practically, मतलब start having practical exposures in things which you haven't heard of. क्योंकि कुछ पता नहीं चलता ना कि मतलब I never thought कि I was good at sales.
Yeah. बट मैंने एक्सप्लोर करा, लीडरशिप एक्सप्लोर करी, ये सब एक्सप्लोर करा, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब आई लाइक डूइंग सेल्स एंड आई वुड वांट अ करियर इन सेल्स. आई लाइक टू इन्फ्लुएंस पीपल, आई लाइक टू लाइक do deals. I don't necessarily like to come in front of camera, but I really like to do the back end of the things. तो मैंने ऐसे ही एक्सप्लोर करा. आई डिड लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन आई बम्प्ड इनटू सेल्स. तो माय सजेशन वुड बी कि यार एक्सप्लोर करो, अभी कुछ सोचो ना कि क्या होएगा क्या नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस तो ब्रो किसी को भी नहीं पता होते कि क्या होएगा क्या नहीं होएगा. तो यही है कि बस एक्सप्लोर करो. हाँ, डेफिनेटली फोकस ऑन योर स्टडीज ऑल्सो, क्योंकि यू आर पेइंग द लॉट इन योर यूनिवर्सिटी एज वेल. तो फोकस ऑन दैट. एंड आई डोंट थिंक सो कि यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम होता है, यू शुड वेट फॉर द फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स तभी तुम पढ़ोगे. थोड़ा थोड़ा करते रहो हर वीकेंड पे. मेरे को नहीं लगता इतना कुछ खास वो बर्डन होता है. और स्पेसिफिकली जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं, जब हम हर मतलब फर्स्ट ईयर का तो सिलेबस ही ऐसा होता है कि ऑन एन एवरेज हर इंजीनियरिंग ब्रांच से वो कोरिलेट करता है. तो जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट होता है या फिर सेकेंड ईयर तक स्टूडेंट होता है, उसको अगर वो स्टार्टिंग से ही किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के तरफ वो अप्रोच करता है, तो वो एक एक्स्ट्रा एज ले जाएगा. जब वो फोर्थ ईयर में वही बच्चा डिसाइड करता है, अच्छा अब मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्लेस होना है. कोई बच्चा आप सोचेगा कि अच्छा सर्विस बेस्ड कंपनी में भी जा सकते हैं. तो अब उस वक्त जाके ये डिसाइड करना कि अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं, चूंकि ये कंपनी का वो कम है, एग्जामिनेशन लेवल कम है, मतलब टफनेस कम है, या फिर इसका सीटीसी ज्यादा है. तो उस वक्त जाके अगर हम ये सब चीज डिसाइड करें, इससे अच्छा हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में ही हम एक प्लान बनाएं, हम एक्सप्लोर करें कि क्या होता है सीटीसी, क्या होता है प्लेसमेंट, हम डेप्थ में जाए. अगर हम मुझे एक एम्प्लॉय ही बनना है तो क्यों ना बेस्ट एम्प्लॉय बना जाए. तो उसके लिए जो भी चीज कंपनी को रिक्वायर्ड होता है कि ये देख के कि अगर मेरा कंपनी होता और हम मेरे जैसा एक बंदा उनको हायर करना है, तो वो उसमें क्या क्या चीज देखेंगे. वो देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में ये बच्चा क्या किया होगा, जो कि इंटरेस्टिंग इनफ हो कि हाँ, अगर हम उसका पोर्टफोलियो देख रहे हैं तो देखते ही मजा आ जाए कि हाँ, ये बच्चे को तो सेलेक्ट करना है. तो अगर हम उस तरीके से देखें तो कितना इंपॉर्टेंस रखता है कि आप जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में भी इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, फेस्ट वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो क्या वो सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये प्लेसमेंट में? जिसको सिर्फ एक एम्प्लॉय बनना है, क्या उसको भी ये सब चीज हेल्प कर सकता है, या फिर सिर्फ ये उनके लिए जो स्टार्टअप या बिजनेस रन करना चाहते हैं फ्यूचर में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको कुछ भी चीज प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं, क्योंकि इवेंट्स वगैरह में भी तुम फंडिंग वगैरह बाहर से लाते हो और ये सब करते हो. आई नेवर हैड अ चांस टू टेक पार्ट इन दीज इवेंट्स, बट आई हैड फ्रेंड्स जिन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब करा है इवेंट्स को मैनेज करके. आई हैड अ फ्रेंड इन इंजीनियरिंग, ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज. मेरे को अभी याद आया हम बात कर रहे हैं, तो मेरे साथ बैठते थे. उनका इंजीनियरिंग में इतना मन नहीं लगता था, तो मैंने उनसे बात करी कि मतलब आपका मन क्या करता है करने का. तो उन्होंने कहा मेरा मीडिया स्टडीज में मन है, पर मेरे पेरेंट्स की वजह से बहुत प्रेशर है, मैं उनसे बात नहीं कर पाता. तो मैंने उनको कहा कि आप मेरे को लेके चलो या एक बार खुद बात करो कि मेरा ऐसे मन नहीं लग रहा और मैं मतलब अच्छा भी नहीं कर पा रहा, उसका कोई फायदा नहीं ना, मतलब कोई भी चीज हाफ हार्टेडली करना. तो उन्होंने एक दिन करेज दिखाया और अपने पेरेंट्स से बात करी, और वो अब अच्छे एंकर बन चुके हैं. उन्होंने मीडिया स्टडीज में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इनरोल किया. तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे कुछ सोच के नहीं करना चाहिए कि आपको आगे प्लेसमेंट में क्या काम आएगा या क्या नहीं काम आएगा. जब आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हो या कुछ कुछ भी चीज पढ़ते हो, क्या आप ऐसे ऐसे पढ़ते हो कि मतलब ये मेरी लाइफ में कब काम आएगी? ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए. मतलब आपको सीखने के लिए पढ़ना चाहिए, वो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है. ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा कि मैंने जो भी चीज करी हो वो काम नहीं आई हो. अब सपोज करो कि मैंने लास्ट ईयर, क्योंकि हम सारी फ्री थे, मैं तो बहुत ही फ्री था, मतलब मेरा इतना बिजनेस का इतना कुछ था नहीं लास्ट ईयर में, क्योंकि लॉकडाउन था. इनिशियल फर्स्ट 6 मंथ्स तो बिल्कुल ही नहीं था. तो मैंने एटलीस्ट 52 बुक्स पढ़ी, ठीक है. अब मैं ये सोचूं कि मतलब इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं ना वेब सीरीज वगैरह इतनी देखता नहीं हूँ. मेरे को मतलब डिजिटल उससे इतना वो उतना मतलब लगाव नहीं है कि मैं अच्छे से उसको देखूं. मैं सीरीज देखूं, 10 एपिसोड देखूं, और एंड में भी वो सस्पेंस छोड़ देते हैं कि अब अगले सीजन में बताएंगे. तो मुझे इतना पसंद नहीं है ये सब ना.
तो मैंने 52-50 बुक्स पढ़ी और मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरे काम आएंगी या नहीं। पर आज जब मैं देखता हूँ कि मेरा लिंक्डइन ग्रो हो रहा है, जैसे मतलब आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन लिंक्डइन इन दिस मार्च, और वो मेरा बुक्स जो मैंने पढ़ा है मैं बस शेयर कर रहा हूँ नॉलेज, और पीपल आर ज्वाइनिंग मी, आई डोंट नो हाउ दे आर ज्वाइनिंग मी, बट मैं वही कंटेंट शेयर करता हूँ, मैं नोट्स बनाता हूँ ना जब मैं बुक पढ़ता हूँ, तो फिर अब मैं वही शेयर कर देता हूँ, और मैं नीचे सोर्स भी लिख देता हूँ कि ये कौन सी बुक से, अगर किसी को पूरी बुक पढ़नी है। तो मेरा यार यही कहने का मतलब है कि ऐसे ये सोच के नहीं करना चाहिए कि आगे प्लेसमेंट्स में क्या काम आएगा या नहीं आएगा। अभी तो फर्स्ट सेकंड ईयर में तो यही ध्यान देना चाहिए कि मतलब तुम्हें क्या चीज अच्छी लग रही है, करो उसको, और फिर बाद में सोचो कि ये इसको हम प्रोफेशन बना सकते हैं नहीं, पर पहली चीज है कि तुम उसको करो, एक्शन ओरिएंटेड बनो। हाँ, और इसी के लिए हम जब भी जहाँ भी बैठते हैं, अभी तो जनरली हम पढ़ नहीं रहते हैं, पढ़ हम दिखाते हैं, जैसे कि ये बुक है, तो ऐसे एक कोई ना कोई बुक हम अपने पास हमेशा रखते हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, और हमेशा तो हम ऑनलाइन नहीं होते, मतलब किसी के साथ वो नहीं होता, तो ऑनलाइन क्लास चल रहा, अब वहाँ पे कुछ ऐसी बातें हो रही जो मेरे इंपॉर्टेंस का नहीं है, मुझे पता है ये इसको हम स्किप कर सकते हैं, ये प्रोडक्टिव में ऐड नहीं करेगा, तो उस वक्त अगर मेरे पास बुक है, तो इंस्टेड कि हम फोन में इंस्टाग्राम खोल के देखने लग जाए, ये बुक का एक दो पेज पलट देंगे, कुछ तो इंसाइट आएगा अंदर, कुछ नया पर्सपेक्टिव देख, मतलब जो अभी चल रहा है उससे कुछ हटके मिलेगा। और फिर जैसे कि हम हमेशा एक दो डायरी अपने बगल में रखते हैं, एक को हम नाम दिए हैं आइडिया बुक, जैसे मेरे दिमाग में जो कुछ आता है हम उसको नोट डाउन कर देते हैं, वो रबिश हो सकता है, आगे हमको जाके लग सकता है कि ये क्या मजाक लिख दिए थे, बट इस टाइम पे अगर हम ऐसे करते हैं तो एक पाथ मिलता है थॉट को, अगली बार जब मेरा कलम लिखने के लिए जाएगा तो वो सोचेगा पिछली बार वाला मिस्टेक मत करना, इस बार कुछ और ऐड करो कि जो पिछले बार नहीं ऐड कर पाए थे। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो कि नेग्लिजिबल है, अगर आप ये नहीं भी करो तो भी आप एक अच्छा लाइफ जी सकते हो, बट ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंस फील कराते हैं खुद के नजरों में कि हाँ आप प्रोडक्टिव थे इस मूवमेंट पे, ये 1 घंटा आपका सही गया। तो उसी तरह एक दो क्वेश्चन है जो हम आपसे पहले पूछना चाहते हैं, हाउ कैन यू बिकम ग्रोथ ओरिएंटेड? मतलब एक माइंडसेट होता है इंसान का, बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, वो किसी भी फील्ड में, वो हो सकता है एक छोटी सी दुकान ही चला रहे हैं, बट आप देखेंगे कि वो ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, मतलब आप उनसे जब बात कीजिएगा यू विल फील की बहुत ज्यादा एनर्जी है उसमें, बहुत ज्यादा, मतलब वो सोचते हैं कि कैसे कर सकते हैं, मतलब हर जगह वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो वो वाला एक माइंडसेट होता है जो कि इंसान बिल्ड कर सकता है, तो वो कैसे हम कर सकते हैं? यार ये ना मतलब बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने ना इसका पहले भी जवाब दिया और अब मेरा थोड़ा चेंज हुआ है इसके रिलेटेड जवाब। तो मुझे पहले लगता था कि सबको ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। मतलब किसी को अगर 9 to 5 जॉब पसंद है और वो कंटेंट है उस सैलरी में या खुश है उस सैलरी में, तो उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। और मतलब मैं ऐसे लोगों को पहले लुक डाउन करता था, मतलब ये मेरी गलती थी। हाँ। पर अब मैं सोचता हूँ कि अगर वो खुश है आदमी उसमें 9 to 5 जॉब में और जितने वो पैसे कमा रहे हैं, तो अच्छी चीज है वो। मतलब कई तो ग्रोथ ओरिएंटेड लोग भी खुश नहीं होते हैं। और मतलब मैं खुद बहुत मतलब आई बीट माई सेल्फ अलॉट कि यार मतलब आई एम नॉट ग्रोइंग इनफ, या मैं इतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कोविड क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। पर ग्रोथ ओरिएंटेड होने का एक ही सोल्यूशन है कि आप छोटे छोटे एक्शंस रोज लेते रहो और रोज सीखते रहो कुछ ना कुछ नया, और मतलब उसको अप्लाई करते रहो। मेन बात यह है कि आप सीखे अप्लाई करते रहो। तो जनरली आपको, अगर आपको एक स्टेप आगे अप्लाई करते हो तो आपको अगला स्टेप अपने आप मिल जाता है। तो यही एक सीक्रेट है ग्रोथ ओरिएंटेड होने का, कि अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान दें और इम्प्लीमेंट करें, जो छोटी सी चीज भी सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करके देखें, उसका रिजल्ट आएगा टाइम के साथ। और एक और क्वेश्चन कि ऐसा एक जनरल है, मतलब खासकर इंडिया में भी और हमेशा हर जगह ही होता है ये चीज, कि डज योर प्रेजेंट सिचुएशन, यू फील कि योर प्रेजेंट सिचुएशन इज एन ऑब्स्टिकल जो आप बनना चाहते हो? मतलब मेजोरिटी लोग सोचते हैं कि चूंकि उनका सर्कमस्टांस ये है या फिर उनका जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ऐसा है, इसलिए वो वैसा नहीं कर सकते। तो क्या ये असल में ऐसा होता है? मतलब अब जब आप एक कॉलेज पास आउट हो चुके हैं तो आपको लग रहा है जो फर्स्ट ईयर में आपका सिचुएशन था वो एक ऑब्स्टिकल था जहां आप नहीं जा पहुंचे या फिर जहां आप पहुंचना चाहते थे, तो क्या वो ऑब्स्टिकल होता है सच में? जैसे कि अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सोच रहे होंगे या फिर जो स्कूल में होते हैं वो सोचते हैं कि ये चीज जो है अभी इसके वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा वो चीज। यार ये ना
इसका बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर मैंने ढूंढा है कि जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, अगर मैं कहूंगा ना कि यार मैं तो अटक गया हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, तो सही में मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी कर लूँ, तो जो भी मैं अपने आप को बिलीव कराना चाहूँ वो अल्टीमेटली ट्रू हो जाएगा। तो मैं भी यही मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि मैं भी ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन वाले बिलीफ सिस्टम में ना फंसूं, पर ह्यूमन नेचर होती है यार, मतलब कभी ना कोई फंस जाता है। पर अपने आप को रिमाइंड कराना चाहिए, मे बी बुक्स पढ़नी चाहिए, मतलब पॉडकास्ट सुनने चाहिए, आप जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए जो पॉजिटिव लोग हैं। तो ऐसे कर करके मतलब अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करो तो इवेंचुअली कोई मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए या किसी के लिए भी। बस अपने बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव रखो और एटीट्यूड को पॉजिटिव रखो। हाँ, क्योंकि हर चीज को करने का ना आपके पास एक कारण हमेशा होगा, एक नहीं। किसी चीज को करने का हो सकता है आपके पास एक ही रीजन हो, पर उस चीज को नहीं करने का आपको 10 रीजन होगा। और अगर आप ऐसे नॉर्मल इंसान से मिल जाए जिसको उस फील्ड में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वो आपको 10 और 100 और ऐसा रीजन दे देगा जिससे वो काम नहीं हो सकता, या जिस वजह से वो काम नहीं हो सकता, या आप नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसका निगेटिव रीजन नहीं है कि उस चीज को नहीं करना चाहिए। हर चीज का निगेटिव रीजन है, बट हमको फोकस करना चाहिए कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव ज्यादा है या कम है मेरे लिए एट द एंड। तो उस पे फोकस करना चाहिए, तो थोड़ा सा एक अंदर से वो मिलता है मोटिवेशन की नहीं करते हैं। फिर एक है कि कुछ ऐसे बुक्स जिसने आपका हेल्प किया हो पूरे माइंडसेट को बदलने में। मतलब एक होता है प्री नोशन हम लोग का, जो कि हम जिस भी सोसाइटी में बड़े होते हैं वहां के आसपास के जो 10-15 मोस्ट टच पॉइंट रहते हैं हमारे, जिनके साथ मेरा मेजोरिटी इंटरेक्शन हुआ रहता है, उन्हीं सबका कुछ ना कुछ एवरेज मेरा भी ब्रेन हो जाता है। तो वो बुक होता है, जब आप बुक एक कोई भी रीड करते हो, तो आप अभी मान लीजिए कि आप इंडिया में से कहाँ से हैं भैया, मतलब किस स्टेट से हैं? मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से। तो जैसे आप चंडीगढ़ से हैं, तो वहां के जो कुछ आसपास के आपके लोग हैं जिनके साथ आप मेजोरिटी टाइम स्पेंड किए होंगे, तो आप उनके ही एक एवरेज हो गए होंगे सम टोटल। और हम जब एक बुक पढ़ते हैं जो कि न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, तो उसका जो माइंडसेट है, वो जैसे लाइफ को देखा है, हम भी उस टाइप से लाइफ को देखने लगते हैं। हमेशा हम 100% उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, एडॉप्ट नहीं कर पाते, पर एक थोड़ा सा चेन ब्रेक हो जाता है, एक थोड़ा सा और एंगल मिलता है कि इधर से भी सोचते हैं। और धीरे धीरे जब हम 3-4 बुक पढ़ लेते हैं, 5 बुक पढ़ लेते हैं, और समझने के लिए पढ़ते हैं कि अच्छा देखते हैं ये राइटर कैसे सोचता है, बस देखते हैं वो कैसे सोचता है, तो उससे ना पता चलता है कि अच्छा इसी सेम चीज का जो हम सोच रहे थे एक और पॉइंट भी है, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो आपको ऐसा 2-3-4 बुक जो आपको लगता हो कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है? यार मतलब मेरा जो डायमेंशन जिसने बदला है ना पिछले साल बहुत ही ज्यादा, वो द भागवत गीता है बाय परमहंस योगानंद की जो ट्रांसलेशन है। उनकी आप शुरू में अगर आपको इतनी हेवी बुक नहीं लेनी तो आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी पढ़ सकते हो, वो भी बहुत अच्छी है। प्लस डेथ है सदगुरु की, उससे भी तुम्हें बहुत पर्सपेक्टिव मिलता है। मतलब उससे ना तुम्हें अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है कि मतलब यू डोंट मतलब योर पीपल्स मतलब योर मतलब जो आसपास के ओपिनियन है दे डोंट मैटर, अल्टीमेटली आपका एक फुट ग्रेव में रहता है हमेशा। तो इट्स अ वेरी गुड बुक। प्लस अगर कोई बिजनेस बुक स्पेसिफिकली बिजनेस बुक पे फोकस करना चाहता है तो मेरे को लगता है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, वो बहुत ही सही है। उनकी राइटिंग मेरे को बहुत क्रिस्प क्लियर और कंसाइज लगती है, वो कोई बुलशिट बात नहीं करते हैं। एक और बुक है जो मेरे को बहुत अच्छी लगी है, तो वो है एलुमनाक ऑफ नेवल रविकांत, वो भी बहुत अच्छी बुक है। और लास्ट बुक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा, वो भी बहुत अच्छी बुक है। उसमें तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन के बारे में बात करिए और जनरली सक्सेस हैबिट्स के बारे में बात करिए, तो अच्छी बुक है। मेरे को लगता है कि ये बुक्स को पढ़नी चाहिए जिसको ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट रखा। जैसे कि आपने सदगुरु का बात किया, ही इज अ सेल्फ थॉट मैन, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, किसी स्कूल से नहीं, तो सेल्फ थॉट मैन रीडिंग थ्रू दीज टेक्स्ट एंड और वो डेवलप कर गया। और जब आप उनके पर्सपेक्टिव उनके बुक के थ्रू देखते हो तो लगता है यार क्या सोचता है ये। तो वो वाला जब आपको एक ऐसा इम्पैक्ट 2-3 पड़ता है ना, तो फिर आप अपने तरह से सोचना स्टार्ट कर देते हो कि अच्छा इसने ऐसे सोचा था, मैं अपना सोचता हूँ। फिर आपका ब्रेन खुद के जो पास्ट एक्सपीरियंस उसके बेस पे वो आपको जनरेट करके आइडिया देते रहता है, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है लॉन्ग रन में।
और एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डू कम्युनिकेशन प्ले ए मेजर रोल इन गेटिंग वट एवर यू वांट? मतलब मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, उसमें क्या कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? यार ये ना तुम्हारे रोल पे भी डिपेंड करता है। अगर तो तुम्हारा कोई बैक एंड रोल है इंजीनियरिंग में, नहीं जैसे टेस्टिंग और ये सब में, तो फिर इतना नहीं करता। पर मेरे को ऐसे जनरली लगता है कि सबको अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, सबके जनरली। ये एक मतलब आजकल नीड बन चुकी है हम्म, सोसाइटी की। हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर तुम अपनी बात अच्छे से क्लियरली कंसाइजली हम्म, मतलब कम्युनिकेट कर सकते हो, हम्म, तो इससे बेटर कोई स्किल है नहीं। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि करनी चाहिए, पर कई बारी एक्सेप्शनल तुम्हारा वर्क होता है, तो कई बारी नहीं भी चाहिए होती। इसका ना बहुत वेग आंसर है ऐसे। वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि किसका क्या रोल है, क्या पार्ट है सोसाइटी में और क्या नहीं। पर अभी तक जितना मैंने देखा है कि मेजरली प्ले करता है। सेल्स में तो बहुत ही ज्यादा करता है कि हाउ यू लुक, हाउ यू ड्रेस, हाउ यू कम्युनिकेट योर फर्स्ट मैसेज से लेके तुम्हारी एंड की क्लोजिंग डील तक। तो हम्म। मेरे हिसाब से करता है, पर मतलब मैं भी इतना श्योर नहीं हूँ यार कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो बैक एंड वाले लोग हैं उनके लिए कितना मैटर करता है। हाँ, तो इस पे ना एक थॉट है, फिलॉसफी है। मतलब आप जनरली लाइफ में देखिएगा, जो भी इंसान इससे नीचे का पार्ट यूज करता है, नेक से नीचे का पार्ट, पूरे पार्ट को आप यूज करके कुछ भी क्रिएट करो, उसका इंपॉर्टेंस हमेशा कम होगा जो इसके ऊपर के पार्ट को यूज करके आप कुछ भी क्रिएट करते हो। लेट्स से आप कुछ ऐसे बातें बोलते हो विच विच कुड बी सो इम्पोर्टेंट दैट आप उन सबको बीट कर दे जो पूरा दिन मेहनत करता है इन हाथ और इन पैर का यूज करके। मतलब ब्रेन के लेवल पे आप कुछ एक ऐसा आइडिया सेट जनरेट कर दो, वो आइडिया इतना इंपॉर्टेंट आपके रोल में प्ले कर सकता है कि आप पूरे लाइफ भी मेहनत करते रहो तो आप उसको बीट नहीं कर सकते हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि वो कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और मॉनेटरी टर्म में तो आप नहीं कर सकते, बट मॉनेटरी इज अ सेकेंडरी जी। ऑलवेज। इम्पैक्ट इज मेनली कि आप कितने लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हो या कितने लोगों में आप वो चीज ला सकते हो जो आप लाना चाह रहे हो। तो हम ऐसा फील करते हैं कि इससे ऊपर, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल है, आप जैसे सोचते हो, आप जो चीजें देखना चाहते हो और आप जो चीज सुनना चाहते हो, ये इतना ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। इसके नीचे का जो भी चीज है वो उतना मैटर नहीं रखता। मतलब आप कैसे खाते हो, आप खाने में कुछ भी करो, यहाँ से अगर आप दिमाग लगाना चालू करो कि क्या चीज है, मतलब एक नेसेसिटी होता है बॉडी का और एक होता है डिजायर। तो आप डिजायर को फुलफिल करने जाओगे तो यू विल एंड अप ओनली गेटिंग इन द ट्रैप ऑफ कि नीचे ही जा रहे हो, नीचे ही जा रहे हो, नीचे ही जा रहे हो। देयर इज नो डाउन लिमिट टू इट। और जब आप नीड फुलफिल करने जाते हो ना, तो हो सकता है 5 मिनट में आपका नीड फुलफिल हो जाए। आपको प्यास लगा, आप एक गिलास पानी पियोगे, नीड खत्म। बट जब आपको कोल्ड ड्रिंक या फिर आप बेस्ट ड्रिंक ढूंढोगे ना कि अभी मुझे कोई अच्छा सा ड्रिंक मिल जाए, तो देर इज नॉट अल्टीमेटम, कुछ अल्टीमेटम नहीं है, आप कुछ क्रिएट भी कर सकते हो। तो मतलब एक ट्रैप होता है इस चीज में। तो ना ऐसे ही मतलब जब ये तो आपका मैं भी इससे नई चीज ऊपर, सीख रहा हूँ यार। हाँ, तो जब आपका इससे ऊपर का पार्ट स्ट्रांग इनफ है तो आप देखते हो वो कोई भी इंसान जो कि बहुत एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होता है, उसका कंट्रोल सिर्फ इन पार्ट्स पे ही होता है। बाकी वो सारे काम करते हैं जो हम लोग करते हैं, उनको भी लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, उनको भी आराम चाहिए, वो हर चीज एंजॉय करते हैं। बस इसके ऊपर वाले लेवल पे ना वो कॉम्प्रोमाइज जनरली नहीं करते हैं। मतलब वो कम्युनिकेशन में कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे और किसी भी आइडियोलॉजी को नहीं मानेंगे। तो बस ये इसके ऊपर के लेवल को आप कंट्रोल कीजिए। बाकी आपको जैसे ह्यूमनली नेचर है, जो एक एनिमल नेचर होता है हर इंसान में, तो वो बिहेव करेगा वैसा, बायोलॉजिकल जैसा नीड होता है वैसे बॉडी बिहेव करेगा। बट टू ए सर्टेन एक्सटेंट आई फील कि इससे ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा इंप्रूव कर देने से बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके भी लाइफ में और जहां पे भी आप रहते हो उस सोसाइटी या सर्कल में। एक क्वेश्चन है कि जैसे कि मतलब कोई भी इंसान ग्रो करता है, मतलब हम आगे 10 साल चले जाते हैं, फिर जब पीछे मुड़ के देखते हैं, तो कनेक्टिंग द डॉट्स वाला जो है स्टीव जॉब्स का, कि हमेशा डॉट्स को ना पास्ट में कनेक्ट किया जा सकता है। मतलब हम जनरली क्या सोचते हैं ना, जैसे हम अभी ये बुक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन दो कि हम बहुत अच्छे हैं उसमें, इसका ये मतलब नहीं है कि आई एम गोइंग टू बी द इंजीनियर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। मतलब डॉट्स को आप कभी भी फ्यूचर में पेयर नहीं कर सकते हो, इन पास्ट यू कैन पेयर इट। मतलब आप अब पिछला जर्नी को देख के एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये बात हुआ इसलिए ये बात हुआ और अब इसलिए ये बात हुआ, और मैं आज इस यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि पास्ट में मैंने ये किया। पर आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट ऐसे नहीं कर सकते हो, सिंस आई एम डूइंग दिस आई विल बी एबल टू डू दैट।
इट्स मोर ऑफ योर हैबिट, मतलब जो आप कर रहे हो प्रैक्टिकली, मतलब जो आपने किया उसके बेसिस पे वो नहीं प्रेडिक्ट होता। तो जैसे कि आपको लगता है कि ऐसा कोई 2-3 मेजर इंस्टेंसेस जिसके बाद आपको लगता है कि जैसे आप सोच रहे थे वो सब चेंज हुआ ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांस, या फिर आप मानते हो कि उन फिलोसफीज में कि जो होना है वो तो होके ही रहता है और वही चीज हो रहा है, मतलब इट्स नॉट कि मेरे वजह से कुछ इसमें चेंज आ रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि जो होना है वो होता ही मतलब हो ही रहता है। हाँ, तुम्हारी एक डेस्टिनी प्ले करती है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि एक तुम्हारी फ्री विल भी होती है जिससे तुम कोई भी चीज अचीव कर सकते हो। हम्म, अब जैसे मैं एक आपको बताया कि मैं यूथ ऑर्गेनाइजेशन आईएसएक में गया था। हम्म, मुझे कुछ भी नहीं आता था उस ऑर्गेनाइजेशन में, पर मैंने मतलब ऐसा सोचा कि मतलब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल नहीं रह सकता, हम्म, तो क्या मैं वाइस प्रेसिडेंट बन सकता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में? तो सारे प्रैक्टिकल आंसर्स बता रहे थे कि नहीं, क्योंकि तुम्हें 1 साल एज अ टीम लीडर सर्व करना होता है, उसके बाद तुम अप्लाई करते हो वाइस प्रेसिडेंट के लिए और उसके बाद तुम बनते हो। हम्म, तो हुआ ये कि जो 6 मंथ्स पहले निकले हम्म, उसमें मैं व्यस्त था। मतलब अगर फर्स्ट के 40,000 पॉइंट्स थे जो कि मेरे थे, हम्म, तो सेकंड के थे मेरे ख्याल से 15,000 के अराउंड। तो जो टॉप मैनेजमेंट थी उन्होंने देखा कि यार मतलब ये तो अलग ही टैलेंट निकला है। तो हम्म, उन्होंने क्या मतलब हुआ क्या कि जो करंट वाइस प्रेसिडेंट था किसी और डिपार्टमेंट का, तो वो अच्छा नहीं कर रहे थे, हम्म, तो वो फायर हो गए। और उसके बाद मेरे को पता भी नहीं, मैंने अप्लाई भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और मेरे को एकदम से सुबह फोन आता है कि आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए। तो मतलब ये ऐसी चीजें होती हैं कि तुम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, ये तो सही बात है, पर मैं ये कहता हूँ कि अपनी तरफ से एफर्ट पूरी करो, हम्म, और मतलब कुछ ना कुछ वो चीजें, तुम्हारी जो फ्री विल होती है उससे तुम कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट कर लेते हो। और मतलब एक ना कोट है कि यू एंड अप गेटिंग वेयर यू वांट टू, जस्ट नॉट द वे यू इमेजिन इट। तो हम्म, मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ। हम्म, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये है, और मेरे को ऐसे मतलब कुछ कुछ चीजें मान सकते हो कि आप प्री डेस्टिन्ड होती हैं, जैसे हम कहाँ बॉर्न हो रहे हैं इस पे हम्म, हमारा कंट्रोल है, हमारे पेरेंट्स कौन रहेंगे, हमारी फैमिली कौन रहेंगी, पर ये नहीं तुम प्रिडिक्ट कर सकते कि तुम आगे क्या करोगे क्या नहीं। तुम एक मतलब मेरे को ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजी से तुम एक वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से तुम ये बता सकते हो कि इस बंदे के अच्छे फेजेस या बुरे फेजेस क्या हैं। हम्म, वो भी अभी मैं स्पिरिचुअलिटी पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को ये चीज पता चली है। हम्म। तो तुम ये बता सकते हो, पर तुम ये तो बिल्कुल नहीं बता सकते कि वो बंदा करेगा क्या क्या नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उसकी फ्री विल पे डिपेंडेंट है ना। तो मेरे को ये लगता है। एक राइटर का कहना है, उन्होंने लिखा है, एक अच्छा सा थॉट है, एग्जैक्ट नहीं याद है, बट उसका मतलब ये है कि यू डोंट सिंक इन वाटर जस्ट बिकॉज यू जम्प्ड इनटू वाटर, यू डिप और यू गेट सिंक इन वाटर जस्ट बिकॉज यू स्टेड देयर। मतलब हम कभी भी या पानी में इसलिए नहीं डूबते हैं कि हम पानी में कूदते हैं, हम इसलिए डूबते हैं कि हम वहीं रुके रह जाते हैं कूदने के बाद। तो कूदने के बाद आप मूवमेंट करो, आप आगे मूव करने की कोशिश करो, water will support you जी to move forward। तो जी उसी तरह मतलब जस्ट जी बिकॉज आई हैव ऑप्टेड फॉर इंजीनियरिंग डजंट मीन कि मैंने इंजीनियरिंग में आया इसलिए मैं अनसक्सेसफुल हो गया या फिर मैं मेरे लाइफ में ये हुआ। इट इज नॉट, इट इज जस्ट बिकॉज कि मैंने इसको ऑप्ट किया, मैंने ये डिसीजन लिया मुझे इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ गया। आई हैवंट डन एनी एफर्ट टू गो फॉरवर्ड। कि मेजोरिटी लोग यही करते हैं, मतलब वी टुक अ डिसीजन एंड वी देन होल्ड आवर हैंड्स एंड वी सेड कि अब जैसे होना है होगा, अब नहीं हो रहा तो हम कंप्लेन कर रहे हैं कि आना ही गलत डिसीजन था। तो वो डिसीजन कभी भी गलत इंसान। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा आपको कि बहुत लोग ना ऐसे मिलेंगे आपको अभी कि मतलब बीच में ना डिग्री छोड़ देंगे और कहेंगे मेरे पेरेंट्स ने मेरे को फोर्स करा था, या मतलब कहेंगे कि डिग्री में ना कोई प्रैक्टिकल वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ये सब नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये ना चीजों से भागना होता है। अब तुमने कोई चीज ली है अपने मतलब स्ट्राइड में, तो उसको पूरी करो। ऐसे नहीं होता कि तुम्हें ये चीज पसंद नहीं आ रही तो तुम बीच में छोड़ दोगे। ये तो कोई एटीट्यूड नहीं हुआ ना तुम्हारा लाइफ के टुवर्ड्स।
कि अगर तुमने अब इंजीनियरिंग 2 साल या 1 साल कर लिया तो उसको कर लो 3 साल और। अगर तुम्हें ये है कि कोई और कोर्स करना है तो वो करो। ये ना कहो कि मैं ड्रॉप आउट बनूंगा, फिर मैं कोई स्टार्टअप खोलूंगा और फिर मैं पहले जो तुम्हें चीज मिली हुई है इन हैंड उसको तो पूरी करो अच्छे से। मेरा भी यार बहुत मन करता था कि मैं ना करूं इंजीनियरिंग, मतलब मैं अच्छे मार्क्स ला रहा था कंसिस्टेंटली, मेरे को ऐसे कुछ ये नहीं था कि मेरे बुरे मार्क्स आ रहे थे या कुछ वो था। पर मेरे को था कि यार अब उठा लिया है और मतलब इतना कुछ बुरा नहीं है। मेरे ना घर से कॉलेज 1.5 घंटे की दूरी पे था, अभी तो आपकी अच्छी सड़क वगैरह बन गई है कॉलेज के बाहर, उस टाइम पे इतना नहीं था। तो मेरे बहुत से दोस्तों ने ऑप्ट आउट करा, मतलब कॉलेज के नहीं पर मतलब जो इधर उधर मेरे स्कूल के भी दोस्त थे उन्होंने भी करा। पर उन्होंने ऐसे मतलब कईयों ने तो अभी तक ग्रेजुएशन नहीं करी। मेरे को ये लगता है कि यार मतलब ठीक है तुम्हें अपने पे बिलीव सिस्टम है तुम्हारा अपने पे, पर मेरे को ऐसा लगता है कि कर लेनी चाहिए यार पूरी। मतलब अभी सोसाइटी इतनी मेच्योर नहीं हुई कि तुम्हें बिना डिग्री के वो देख पाए। मेरे को ऐसे लगता है कि मतलब अगर और तुमने अगर कुछ उठाया है अभी करने के लिए तो उसको कर लो पूरा। ऐसे मतलब क्या जा रहा है तुम्हारा। क्योंकि इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए राइट डिसीजन हम एक डिसीजन लेके उसको राइट प्रूव कर सकते हैं। मतलब इट्स ऑल अप टू अस कि जो भी डिसीजन हमने लिया उसको हम राइट प्रूव कर सकते हैं। हाँ, हमेशा, क्योंकि हम राइट डिसीजन पहले से ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी सिचुएशन रैंडम होती है, तो और इन जनरल रैंडम ही होती है टिल द मोमेंट वी आर इन स्कूल फेज। तो डिसीजन ऐसे फ्लो में चल रहा होता है, आप कुछ भी डिसीजन लो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, आप प्रमोट होते जाते बट व्हेन यू कंप्लीट योर स्कूलिंग एंड यू गेट इंटर्ड इनटू ए कॉलेज, यू स्टार्ट सीइंग कि ये ऐसे काम नहीं करता है, कुछ एफर्ट भी होता है जो करना पड़ता है आपको, हर सेमेस्टर हर वीक प्रूव करना पड़ता है आपको टू योरसेल्फ एंड टू एवरीबॉडी एल्स। तो वो वाली चीज। एक लास्ट मैसेज जो आप सबको देना चाहेंगे यूथ हु आर entering the college or who are aspiring for engineering and all, मतलब who are enthusiastic about life? Yeah, I would definitely recommend to start exploring new things by practically doing it. Plus, I would suggest them कि मतलब if you can't read books, I would definitely suggest them to read books. But if you can't read books, listen to podcasts or any self-help content. जो भी तुम्हें क्रिएटर अच्छा लगता है, आजकल तो YouTube पे बहुत आ गए, पर उनका सुनो जिन्होंने मतलब खुद कुछ अचीव करा, किसी और का ना सुनो। यही दो चीजें हैं। और एंजॉय करो यार, मतलब ज्यादा टेंशन वगैरह ना लो, अभी तो अच्छे टाइम है बहुत तुम्हारा। तो एक्सप्लोर करो और देखो तुम्हें क्या चीज पसंद है। कई बार पता ही नहीं होता कि तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो तुम्हारा पूरा लाइफ चेंजिंग इवेंट में हो जाता है। तो यही कहूंगा कि एक्सप्लोर करो, बुक्स पढ़ो, बुक्स ना भी पढ़ो तो कुछ अच्छा देखो जिससे तुम्हें सीखने को मिले, कुछ भी हो अच्छा करो जो भी हो। So thank you so much आयुष जी। मतलब ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और वी विल गेट यू इन टच विद सुन कि हम जब इसमें और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा सा इसको स्केल अप करते हैं, उसके बाद फिर हम आपके साथ वो करेंगे एक नए आयुष के साथ which have evolved। और बेस्ट ऑफ लक यार। सेम टू यू। तो मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सी यू। बाय।